क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 विच इज़ मोशन। इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करते समय सिर्फ आंसर निकालना हमारा एम नहीं है, हम कॉन्सेप्ट जो हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे अपने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा एथलीट है, ये सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करता है। ये सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर हमको दी गई है 200 मीटर, ठीक है। और ये कितना टाइम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? सो टाइम टेकन t इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। सो अगर हम यहाँ पर गिवन लिखें, क्या क्या दिया गया है? हमको दिया गया है डायमीटर d इज इक्वल टू 200 मीटर, टाइम टेकन बाय एथलीट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन t, ये दिया गया है 40 सेकेंड। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, हमसे कुछ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 सेकेंड। सो हमको क्या पता लगाना है? वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट at the end of t1, that is 2 minutes 20 seconds। तो इसको यहीं पर हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 minutes 20 seconds को सेकेंड्स में, बिकॉज वी नो दैट वी हैव टू डील इन SI यूनिट्स एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट? सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 minutes दैट मीन्स 2 into 60 seconds प्लस 20 seconds, ठीक है। 2 into 60 plus 20 seconds, that means 2 6 are 12, 120, 140 seconds. So that is 140 seconds. पहले तो हमको ये पता करना होगा, सपोज ये पॉइंट ए है, तो अब इसको कैसे करेंगे? पॉइंट ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस कवर्ड भी बतानी है, ठीक है। नाउ वी नो दैट व्हाट इज डिस्टेंस। अब यहाँ पर सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। सो let me get it very clear to you that the distance is not concerned where is the final point, where is the initial point. Distance is just the total length of the path, right? You are starting, okay, whatever path you are taking, okay, suppose this is some part, so you have finished here, so now you need the starting point and the end point just to get the path. Now what you will do, you will take a thread and put that thread on this path to overlap the whole path, and then you just take the measurement of that that thread which have overlapped on the whole path. Now the length of this thread will be what? Simply your distance, right? Now suppose this is your path, so this is the starting point from where you have started, and this is where you have finished, right? So end point I am writing it. So now the length of this whole path will be what? Your distance. But what is displacement? Displacement will be what? The shortest distance between the initial point and the final point, starting point and the end point. Whatever will be the shortest distance I am saying, because it is always what? Or you can say the length of the shortest path, because length of the path is what?
distance. So you can say, so what is the, between any 2 point, what is the shortest path? Any curvature you will take will always be lengthier than a straight line, right? So that's why whenever you have to find the shortest path or the shortest distance between the 2 points, you will draw a straight line between those 2 points, and the length of that straight line will be what? Your shortest path, right? So, and the measurement of this shortest path is what? The magnitude of displacement. We know that measurement of this shortest path is what? Magnitude of displacement. This is your magnitude of displacement. Now, why I have written separately that magnitude of displacement, and I have not used this word while calculating the distance between these 2 points? Because we know that displacement is the vector quantity which has both the magnitude and the direction, right? Now you just think of it, what will be the direction? If displacement is a vector quantity, then the answer would be incomplete if we will not give the direction, right? Although sometimes you cannot give the direction perfectly, but most of the time, if it is possible for you to give the direction, then you need to give it. Otherwise, the answer would be taken as incomplete. So, see, in this question, let me show an arrow. Let me show the direction with an arrow. I can show it with an arrow only. So, this is the straight line which is the shortest path, and the measurement of this will give you the magnitude. And always remember that the direction will be towards from starting point to the finishing point, end point. Because displacement is just like, आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस तरफ आप मूव कर रहे हो, किस तरफ आप गए हो, कहां पर आप खड़े हो. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ पोजीशन वेक्टर, is a kind of, I can say, position vector from starting point to end point. Now what is this position vector is a higher classes issue. In the 11th class you will see this, but for the timing you can just check it that it will always point from starting point to end point, and this is an obvious point, right? इट इज क्लियर कि हाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ ही तो डायरेक्ट करेगा. अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने. ये तो हमारे कॉन्सेप्ट की बात हो गई. तो देखिए, आइए क्वेश्चन सॉल्व करें. अब देखो, इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा लिखा है क्या कि एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड विद यूनिफॉर्म स्पीड. ऐसा कहीं नहीं लिखा है. विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड कहीं नहीं लिखा है. ये दिमाग में आप रखिए पहले. अब ये मैंने पॉइंट क्यों उठाया है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समझेंगे. तो नाउ इट्स, आई थिंक, इजी फॉर यू to find out what the speed is equal to distance covered upon time taken. Distance upon time taken. What we are doing, we are given. देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, जो चीज आपको दी गई है, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आपको दिमाग में पहले इसके साथ खेलना है. अगर आपने दिमाग में पहले ही सोच लिया कि इट इज गोइंग टू बी टफ क्वेश्चन, देन ऑब्वियसली आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और दिमाग तो फिर चलेगा नहीं. तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक तरीका आप ये समझ लीजिए, आपको गिवन लिखना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, टू फाइंड लिखना है अलग से, और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट इसमें कि ये गिवन में से ही कुछ हमको करना है जिससे हम टू फाइंड वाला आंसर निकाल लें.
फिर आपका दिमाग जो है, दिमाग को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरीके से चले। इसलिए ये अपने सहूलियत के लिए, फॉर योर इजी अप्रोच, ये लिख लिया करिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमको डायमीटर दिया गया है और यहां पर हमको टाइम दिया गया है पूरे 1 रिवॉल्यूशन का। अब इन दोनों में ऐसा क्या कनेक्शन है कि हम कुछ निकाल सकें? तो देखिए अगर डायमीटर दिया गया है तो मैं इसका सर्कमफेरेंस तो इजीली निकाल लूंगा, ठीक है। तो जब अब मैं सर्कमफेरेंस इजीली निकाल सकता हूं, वो सर्कमफेरेंस क्या होगा? मेरा दिमाग चल गया कि वो सर्कमफेरेंस होगा द लेंथ ऑफ द पाथ। एंड व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ द पाथ? इज द डिस्टेंस कवर्ड। नाउ दिस डिस्टेंस कवर्ड व्हेन डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू व्हाट? स्पीड। सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज स्पीड ऑफ द, so I am denoting it with a small s. What is the speed of this athlete while executing the circular motion? ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई d, that is 200 मीटर, पाई d, 2 pi r, that is pi d, right, upon time t. So this is pi into 200 divided by 40. Right now, don't completely solve it right now. Keep this speed in pi. ठीक है, find out the speed with pi at its place. Don't open up the pi and solve it in decimal. ठीक है, तो अभी पाई की फॉर्म में ही हम स्पीड को रखते हैं। देखिए 4 5 20, राइट। सो पाई की फॉर्म में ही मैं स्पीड को अभी रखूंगा। पाई को फर्दर सॉल्व करके इसको अभी मैं डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करूंगा, राइट। सो 5 पाई मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, सो उसमें इजी रहेगा, राइट। हमसे स्पीड तो पूछी नहीं गई है, सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट इनटू डेसिमल राइट नाउ, बट तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे से अपने आप समझ आ जाएगा आपको। अब देखिए, अब आप डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा जो मुझसे पूछी गई है। डिस्टेंस एट द एंड ऑफ t1, टाइम t1 हमारा 140 सेकेंड है, विल बी व्हाट? डिस्टेंस विल बी व्हाट? यहां से डिस्टेंस देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा यहां से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर एट टाइम t1 क्या आ जाएगा? s इंटू t1, राइट, s इंटू t1। सो व्हाट इज s? 5 पाई into t1, what? 140 seconds. Now see, now when you will solve it, so what is pi? Pi is 5 into 22 by 7 into 140। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे 22 by 7 किया होता तो ऑब्वियसली ये पॉइंट में आता, और पाई जो है, पाई की वैल्यू क्या होती है? वो डेसिमल के बाद अनएंडिंग डिजिट्स होती हैं, ठीक है। बट जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे, सो इट कैन इजली 140 कैन इजली बी डिवाइडेड बाय 7, तो यहां पर डेसिमल नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट इन पाई, सो दैट वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू हियर। यहां पर आपने 3.14 डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक या 3 डिजिट बाद तक सॉल्व किया होता तो वो फिर यहां पर फर्दर डेसिमल में ही आंसर आता। बट यू कैन सी that when you are taking it as 22 by 7, it is giving you the whole number, not the decimal, right? So 7 2s are 14, and now you can solve it and you can get your answer. So that is your distance covered in meter, right? 2200 meter. Now you have to find the displacement at this moment. So now try to understand it. तो अब देखिए हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, डिस्टेंस क्या होगी एट द एंड ऑफ टाइम t1, 2200 मीटर, ये डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, ठीक है।
बट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पहले सोचते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी तो हमको यहां पर दी नहीं गई है, क्यों? क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्टली वी कैन नॉट फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो वी विल हैव टू अप्लाई आवर माइंड एंड वी विल हैव टू गेट बैक इनटू व्हाट? द बेसिक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बेसिक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे हम जाएंगे। हमने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको यहां पर पता है, दैट इज पॉइंट ए। अब एंड पॉइंट हमको पता करना होगा व्हाट? एट टाइम t इज इक्वल टू 140 सेकेंड। ये हमको पता करना होगा। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 140 सेकेंड हम क्या करेंगे? इसका लोकेशन पता कर लेंगे और फिर उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट विल बी व्हाट? इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये देखते हैं पहले कि जब ये डिस्टेंस 2200 मीटर कवर कर चुका है तो इसने कितने रिवॉल्यूशन घूमे, ठीक है। वो रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल यूनिटरी मेथड आपको ये पता है कि ये एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चलता है, कितनी डिस्टेंस चलता है आपको दिया गया है ना, इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या है इसका? पाई डी, ठीक है। तो हम इसको यूनिटरी मेथड को कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इन कंप्लीटिंग डिस्टेंस ऑफ टू 200 पाई मीटर, राइट। 200 मीटर इज योर डायमीटर। सो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा इस सर्किल का? सर्कमफेरेंस इस ट्रैक का क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज पाई डी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो। तो 200 पाई मीटर्स, in completing distance of 200 pi meters, it completes how many revolution? It completes, you should write here, in covering, ठीक है। In covering distance of 200 pi meters, it completes number of revolutions is equal to 1, right? So in covering distance of 1 meter, it will complete number of revolution is equal to 1 upon 200 pi, right? I am taking it to the simplest level, ठीक है। जिसको मैथ्स भी कमजोर है जिसकी, उसको भी ये समझ में आ जाए इस तरीके से, राइट। ये तो हम देख ही चुके हैं। डिस्टेंस कवर 2200 मीटर है एट टाइम t1। सो इन कंप्लीट कवरिंग व्हाट 2200 मीटर, इट कंप्लीट्स number of revolution is equal to 2200 into 1 by 200 into 22, सॉरी पहले पाई लिखें नहीं तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया। 200 पाई, ठीक है, यही होगा। दिस इज how we solve questions with unitary method, right? Now it's getting simpler, I think. So 2200 into 1 by 200 into 22 by 7. Now this 7 will go up, so it will be like
this 7. Now see, this will remain 100 and this will be 2. So how many revolution? 7 by 2 revolutions, that is 3.5 revolution. So it has completed 3.5 revolutions, right? So it has completed 3.5 revolutions. अब यहां से हमको इसका एंड पॉइंट कैसे मिलेगा ये देखिए. थ्री 3.5 रिवॉल्यूशन ना, तो ये हमारा हो गया सर्कुलर ट्रैक, ये पॉइंट ए. ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन ये हो गया. लेट मी शो इट विद another different color, right? So एक रिवॉल्यूशन तो उसने ये लगा लिया, राइट? दूसरा रिवॉल्यूशन फिर ये लगाएगा, तो दूसरा रिवॉल्यूशन भी एथलीट ने कंप्लीट कर लिया, तीसरा रिवॉल्यूशन भी एथलीट ने कंप्लीट कर लिया, राइट? नाउ 3.5 जब, so after 3 revolution, half revolution, 3.5 मतलब 3.5 revolutions complete करेगा, right? 3.5 revolutions. So now see, this will be the position, this point B, right? देखो यहीं तो पहुंचेगा. So just opposite to A, this point B will be the position of, this will be the position of athlete at the end of time t1 is equal to 140 second. So this is the position, this is the position just opposite to A on the circular track. The point B is the position of the athlete at the end of time t1 is equal to 140 second. अब ये कई लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. आपकी डिस्प्लेसमेंट इस मूवमेंट पे क्या होगी? यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल बी व्हाट? द डिस्प्लेसमेंट. अब ऑब्वियसली यहां पर डायरेक्शन नहीं दे सकते, किसी ने पॉइंट यहां पर मान लिया होता और यहां पर उसका निकला होता पॉइंट बी, पॉइंट ए यहां माना होता, तो सर्कुलर ट्रैक में हम डायरेक्शन नहीं दे सकते. हाँ, बट ये जरूर लिख सकते हैं जस्ट अपोजिट टू पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, ऑन द सर्कुलर ट्रैक. या सो एट दिस पोजिशन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? द लेंथ ऑफ दिस line. The length of this line is what? This is nothing but diameter, so this is 200 meter. So what will be the displacement at the end of T1? The displacement will be what? 200 meter. I think it is very much clear. अब देखिए इसमें एक बात समझने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला था कि एट द एंड ऑफ सॉल्यूशन वी विल सी, वो ये है कि हमने इस पूरे सॉल्यूशन को इस तरीके से देखा है कि व्हेन ही वाज मूविंग ऑन दिस ट्रैक, एथलीट जब इस पर दौड़ रहा था, इस ट्रैक पर भाग रहा था, तो हमने कहीं पर ये क्वेश्चन में नहीं देखा था कि क्वेश्चन में लिखा हो कि विद यूनिफॉर्म स्पीड. ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है it is covering equal distance in equal interval of time. The athlete is covering equal distance in equal interval of time. Right? और हमने ये पढ़ा है कि एक्सिलरेटेड मोशन कैसा होता है. एक्सिलरेटेड मोशन ये होता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट ना रहती सपोज, तो यहां पर ये एक्सिलरेशन से भाग रहा होता कुछ, तो फिर ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नहीं लगा सकते थे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम यहां पर ये फॉर्मूला लगाते तो गलत हो जाते. ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है व्हेन
देयर इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, राइट। अगर मोशन एक्सिलरेटेड होता तो फिर ये क्वेश्चन हम इस तरीके से निकालते और गलत हो जाता, और ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा भी नहीं था। लेकिन जितना हमारे पास डेटा दिया गया था इस क्वेश्चन में, हमारे पास और कोई चारा नहीं था इसको सॉल्व करने के लिए कि हम इसको अदर किसी वे में सॉल्व कर पाते, इसलिए ये हमारा खुद का एजम्पशन हो गया था। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है कि यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि इस बुक में आपके तो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया है, आपने यहां देखा सर्कुलर मोशन और मान के कर दिया। लेकिन हो सकता है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये मेरा एजम्पशन था यहां पर, वी हैव एज्यूम्ड दैट the athlete is moving around the circular path with a uniform speed, so it can be written by you। ये क्वेश्चन में जब आप गिवन लिख रहे हैं और टू फाइंड आउट लिख रहे हैं तो उसमें एजम्पशन भी ये समझ के लिख सकते हैं कि हमने ऐसा एज्यूम किया है कि इज, बट याद रहे अगर यहां पर एक्सीलरेशन कहीं दे दिया होता विद एन एक्सीलरेशन दिस, तब ये आप ना एजम्पशन मान के कर दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन में अगर लिखा होता अलग से कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर सो एंड सो इन सो एंड सो सेकेंड्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ सो एंड सो, तब आप इसको उस तरीके से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिख दिया गया है विद एन एक्सीलरेशन, बट आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। ठीक है, एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन अभी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि क्वेश्चन में नहीं लिखा था कुछ ऐसा, फिर भी हमने एज्यूम करके यही करा है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। चलो ये कोई स्ट्रेट 300 मीटर रोड है, यहाँ ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस हमको दी गई है 300 मीटर, राइट। इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम टेकन क्या है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 मिनट्स, दैट इज 2 इंटू 60 प्लस 30 सेकेंड्स, ये कितना हो गया 150 seconds। because we have to solve it in SI unit, that's why we are converting it, and then turns around and jogs 100 meter back, वापस घूम जाता है, A से B गया, A से B गया और B पे वापस घूम जाता है एंड बैक जाता है ये 100 मीटर तक। so suppose it reaches to point C and this is 100 meter, right, in another 1 minute, and B to C में जो टाइम T1 है वो क्या है 1 minute, that is 60 seconds। what are the Joseph's average speeds and velocities in jogging A from A to B and A to C। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, टी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया था 150 सेकेंड्स, और टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी T1 ये कितना दिया गया है 60 सेकेंड्स। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या है, जोसेफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ए टू बी ए टू सी में। ठीक है,
हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज एंड एवरेज स्पीड, स्पीड के लिए आई एम यूजिंग, and this average is what it is showing, subscript is showing average and v is velocity, s is speed for a to b and second point है a to c। तो चलिए सबसे पहले हम एवरेज स्पीड, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो इजी होती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है देन इट्स इजी, अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है देन, और या फिर फॉर्मूले से नहीं निकलता है, देन वी गो बैक टू द बेसिक कॉन्सेप्ट एज वी हैव सीन इन द लास्ट क्वेश्चन, राइट। सो एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अब सबसे पहले पॉइंट ए, जो पार्ट ए है क्वेश्चन का, उसको देख लेते हैं। पार्ट ए है हमारा ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या हमको दिया गया है, यस दिया गया है 300 मीटर, अपॉन टोटल टाइम टेकन ए टू बी दिया गया है, यस दिया गया है 150, सो इट इज सिंपल 2 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी के लिए देखते हैं एवरेज स्पीड, सॉरी ए टू सी, ए टू सी के लिए क्या हमें टोटल डिस्टेंस पता है, यस, total distance is what, length of the path, distance is what, length of the path, so S average will be what, total distance for A to C is what, AB plus BC, and total time taken will be what, T plus T1, so it is again AZ, so this will be 400 and this will be what, 210। रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गए थे, तो अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट, राइट। नाउ सी, वी वर अबाउट टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ए टू सी के लिए, ए टू बी हमने फाइंड आउट कर लिया था, ए टू सी देख रहे थे। सो ए टू सी के लिए हमने क्या देखा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी व्हाट, ए बी प्लस बी सी, राइट, बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द पाथ एंड टी प्लस T1। तो ये कितना हो जाएगा 400 मीटर और ये टोटल टाइम 210 सेकेंड्स, सो आंसर विल बी व्हाट 40/21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। सो एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, याद करेंगे, सोचेंगे क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नाउ कैन वी फाइंड आउट द वेलोसिटी बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, लेट्स सी whether, so first apply for A to B, the part 1 of the question, first apply this. So for A to B, do you have the displacement given? Yes, you have the displacement given because it is the straight path and the length of that path will be what, displacement. So A to B के लिए तुम्हारा जो डिस्टेंस दिया गया है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, because it is the straight path and the person was jogging on the straight path, and we know that the straight path between any two point is what, the shortest path, and length of that shortest path will be what, the displacement. So we have easily the displacement 300 and the time taken we know that this is T for 150 seconds, so answer will be
द मैग्नीट्यूड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ एवरेज वेलोसिटी का हमारा मैग्नीट्यूड आ गया. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन? आई टोल्ड यू दैट द डायरेक्शन विल बी ऑलवेज बी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट. ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट का बताया था कि डायरेक्शन क्या होता है. किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वी विल हैव टू गिव द डायरेक्शन आल्सो. सो डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट. तो ए से बी के लिए जो है स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट क्या होगा? अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सो दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट and the direction of displacement will be the direction of velocity. So this will be, you can write it like from A to B. So 2 meter per second from A to B is what? The complete answer. From A to B is giving the direction of that average velocity. Now check it out for A to C. So A to C we will have to apply again what? That formula, that average velocity is equal to total displacement upon total time. Now check it out. The total displacement can be find out for the path A to C. How? See, you have A to B given, you have A to B, then he turns from B and moves backward to 100 meter, right? He jogs backward to 100 meter, so this is 100 meter. So now what will be the displacement from A to C? The total displacement from A to C will be what? The distance of the shortest path between A to C. Now the shortest path between A to C will be this straight line, and this straight line can easily be find out by AB minus BC, that is 200 meter, right? So this we have put it in this formula, and the total time taken, I think you know that A to C में जाने में total time क्या लगा था? T plus T1, right? So ऊपर दिया गया है T plus T1, that will be 150 plus 60 is equal to 210. So you can further solve it and get your answer. Now for direction, without direction the answer of average velocity is incomplete, and here we can easily give out the direction, so it is necessary. Now direction is always pointing from starting point to end point. For A to C we are considering, when A to C, then A will be the starting point and C will be the end point. So the arrow of this green arrow is giving you the direction, so you can easily write from A to C, right? अब देखिए ये वाला तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आई विल नॉट सॉल्व इट. व्हाई? बिकॉज इट्स मोर अ मैथमेटिकल क्वेश्चन. बिकॉज सी यहां पर क्या दिया गया है? अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. Return it trip on his return trip along the same route. There is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul's trip? Overall trip की average speed निकालनी है. अब यहां पर सपोज ये पॉइंट ए है या ये होम है और ये स्कूल है, एंड अब्दुल फ्रॉम होम टू स्कूल टेकन एनी पाथ, सपोज एनी पाथ, दिस इज दैट पाथ विच अब्दुल हैज टेकन. सो व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, Abdul's average speed while driving to school, Abdul's average speed was what? 20 km per hour. And while coming back from school to home, Abdul average speed, अब्दुल की कितनी थी? भीड़ भाड़ नहीं मिली, ट्रैफिक कम था, तो इस बार एवरेज स्पीड उसको बढ़कर मिल गई. सेम रूट से वो आया, 30 किलोमीटर पर आवर थी. अब ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है टोटल ट्रिप की, मतलब गोइंग टू स्कूल एंड कमिंग बैक, रिटर्निंग. तो उसकी पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड पूछी गई है. तो यहां पर तो देखो
अब एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाला जाता है। अब यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते क्योंकि टोटल टाइम उसको कितना लगा स्कूल जाने में और वापस आने में, इतना सब करने की सोचना ही नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर दिए गए, 2 नंबर का एवरेज निकालना है। तो इट्स अ सिंपलेस्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन। सो एक एवरेज स्पीड आपको दी गई है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रिटर्न की एवरेज स्पीड दी गई है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3, 30 किलोमीटर पर आवर ओवरऑल एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। टू एस एवरेज 1 सपोज। नाउ अब आपसे टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एस एवरेज 1 प्लस एस एवरेज 2 अपॉन 2। तो ये तो सिंपल है, एस एवरेज 1 प्लस एस एवरेज 2 अपॉन 2, सो दैट विल बी 20 प्लस 30 अपॉन 2, सो 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये एक एवरेज स्पीड बताई गई। यहां पे मैं एक आपके लिए एक थिंक एंड लर्न वाला क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, सोच के देखिए। यहां पर एक एवरेज स्पीड बताई गई है कि व्हेन ही वाज गोइंग फ्रॉम his trip from home to school, suppose not home but somewhere he was and to school, so his trip to school was given, the average speed for this trip was given 20 kilometer per hour. Just take this speed only and think of it कि 20 किलोमीटर पर आवर उसको टाइम लग, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी जब वो स्कूल तक पहुंचता है, ठीक है। अब आप ये सोचिए, कभी भी आप स्कूल जा रहे होंगे, क्या आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड ही रहती है? जो आपका स्पीडोमीटर होता है बाइक पर, स्कूटी पर, जो आप या कार में जो आपका स्पीडोमीटर होता है, उसकी सुई कभी 30 पे जाती है तो कभी 40 पे जाती है, कभी 60 पे, कभी 20 पे, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक एंड अदर थिंग्स ऑन द रोड। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीडोमीटर है उसकी तो स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, बट आप एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी स्पीड है जो स्पीडोमीटर पे हमको मिलती है, ठीक है, ये आप सोचिए और आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।